Now we move on to the final segment of our placement talks, the non-core section. I, Harsh Kumar Gupta, and Aryama Singh Parihar are going to be the moderators of this section. We're glad to welcome our seniors. We have with us Kumar Akash sir, Rijure Khaldar sir, and Umang Tulsan sir with us. Aryama. Hello, seniors. So, our first question to you is why did you choose to take the non core sector even when the prospects of a petroleum core job were good? Hello everyone, am I audible? Yes, Yes, sir, sir. you are audible. Hello everyone. I would like to take this question. Uh, I also was quite inclined towards petroleum engineering, and also I pursued an internship at UTP Malaysia during my second year. That was a research intern. So I also wanted to go in the petroleum sector, but there's a time when like you will figure out that no, you don't want to pursue this thing. And regarding the future prospects, you have very thin options. I won't say thin options, but limited options considering you are going in the core sector. And if you want to go in the non-core sector, you have a variety of options like you analyst role or the applied scientist roles or the developer roles, which are quite common nowadays. But the main factor is that if you really don't like to study core, like many people don't like to study core subjects at all because from the beginning itself they have been pursuing petroleum just because they got this branch and not because they chose to. So if you actually don't like to study the subjects of petroleum engineering, I would suggest that you could go in the non-core background. At least try your hands on it. You don't know maybe good work or not, but it's at least worth a shot. And so yeah, you can add on to it. Am I audible? Yeah, yeah. Yeah. Sir, how did you resolve this doubt of choosing, like finalizing which side you are going, non-core or core? Actually, I have pursued double major, if you people don't know. So I took this decision at the end of my second year. I really wanted to pursue computer science also, like everyone does, most probably. So it was not a difficult choice for me, at least. I think you should ask this question to the other two people who most likely are from the petroleum background itself. Okay, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Okay. Okay, I would like to speak a bit on this topic. First of all, there's a misconception that consultancy is non-code. I mean, it's kind of a hybrid, and it's a manage. It's like consultancy has been reserved for, like, there's engineering consultancy and there's supply chain consultancy, which is kind of reserved for people from management backgrounds. So the when they're hiring you, a consultancy firm is hiring you from IIT, an engineering college, they don't expect you to be like proficient in the like hardcore management consultancy part. You are expected to serve as an engineer and make sure that your engineering knowledge is up to the part. And like unlike the coding sector where people have a particular passion for coding and maybe they do not want to pursue a career in their field of study, which is petroleum engineering, they might go like fully focus on it. Consultancy is like you are supposed to solve industry problems which is related to your field, may or may not be both related to your field. So it is better that if your engineering knowledge is up to the mark. And that's it. Like the question of choice is that I also wanted to get into core companies, but and Accenture was also one of the earlier placement days company. Like it happened within day zero or day one, and I got into Accenture, and I was blocked of other interviews. And if I had opportunity for core, I would have definitely pursued it. It's not a choice of that. And there's that. That's what I would like to say. That like
for consultancy or for the part that I'm in, do not like stay detached to your code and like revise your core knowledge, because it's also important apart from your other field. Like if you know machine learning or development is very good. That's it. Sir, I had a follow-up question for you. Is it possible to manage both together? Here's the thing, like if you want to be super specialized, right, it's kind of difficult. And like if you have a stunning grade, like if you're like a 10 pointer or like a club batch topper, you can also extend in consultancy specifically, because they kind of want you for your engineering knowledge. But for like coding, I don't know what's the point of excelling in both, unless you're like a especially like serving as an ML engineer in a petroleum company where you need to have like cutting in knowledge of both. Maybe there are positions in Schlumberger for that, but that's kind of specific. I would say focus entirely on one. That's better. Like if you look at the seniors who got into coding companies, they specifically focused entirely on it. They didn't bother with code at all. And in my case, I kind of dabbled in everything. I did WebD, I did ML. I have my projects were like petroleum projects and machine learning with petroleum data sets. And my some portion of my interview also went into that, like how like machine learning can be implemented in real life scenarios of petroleum engineering. So there's that. Like I think Kumar Akash can answer that better if you ask him about the coding part, like Yeah, whether I you would should like to add on manage both. this. फर्स्टली देखो कि कोर और नॉन कोर दोनों एक साथ मैनेज करना मतलब पॉसिबल तो नहीं है, बट ये चीज हो सकता है कि तुम लास्ट मोमेंट पे लाइक प्लेसमेंट से पहले अगर नॉन कोर कर रहे हो तो कोर में शिफ्ट हो सकते हो अगर सीजी अच्छा है तो। कोर मतलब कोर वाले सीनियर्स ने ही बताया होगा कि पेट्रोलियम मतलब ठीक ठाक इंटरव्यू के लिए पढ़ने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लाइक अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा सीजी है तो तुम 2-3 महीने में भी, अगर समर खत्म हो रहा है उसके बाद 2-3 महीने में भी ठीक ठाक पढ़ के तुम कोर में जा सकते हो। बट नॉन कोर स्पेशली कोडिंग में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तुमको अगर कोडिंग में जाना है तो पहले से तुमको करते रहना होगा। मतलब टाइम लगेगा, काफी टाइम लगता है। तुम लास्ट मोमेंट पे कोर में स्विच हो सकते हो, और ऐसे बहुत लोग दिखेंगे भी जो नॉन कोड कर रहे थे। हम लोग के पास से बहुत लोग ऐसे हैं जो नॉन कोड कर रहे थे बट एंड ऑफ द डे वो कोड में गए हैं। और मैंने भी कोर कंपनीज का इंटरव्यू दिया है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे रिज्यूमे पे निकल जाए, और रिज्यूमे तुमने ठीक ठाक बना रखा है, तुम कोड में बता रहे हो तो जा भी सकते हो, वो पॉसिबल है। बट कोड से नॉन कोड में तुम नहीं जा सकते हो ऐसे। और इसके अलावा दोनों चीज साथ में नहीं हो सकता। लाइक तुम अगर चाहोगे कि तुम कोड कंपनीज का भी तैयारी करो और नॉन कोड का भी एक टाइम पे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। एक मतलब तुम्हें चॉइस तो बनाना ही होगा कि क्या करना है। ये चीज बस एक पॉसिबल है कि लाइक अभी से तुम कोड कर रहे हो, अब तुम थर्ड ईयर में तुमने कोड किया, फिर फाइनल ईयर में समर में अगर मतलब नॉन कोड कर रहे थे तुम, और थर्ड ईयर में पूरा नॉन कोड किया थर्ड ईयर तक, फिर फाइनल ईयर में गए तो समर से या फिर फाइनल ईयर में जाने के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं उसके बाद से कोड करना शुरू किया। अगर सीजी अच्छी है तो प्रॉब्लम नहीं होगा नॉन कोड में कोड में जाने में। सीजी अच्छी नहीं भी है, लाइक 7+ भी है, तो भी तुम जा सकते हो। ऐसे हैं लोग जिनका हुआ है कोड में जो पहले नॉन कोड कर रहे थे। तो एम आई क्लियर? Yes, sir. Sir, I had one doubt. How did you या decide कि आपको वेब डेवलपमेंट साइड में जाना है, मशीन लर्निंग साइड में जाना है, या फिर कम्प्लीटली कोर ऑफ नॉन कोर जिसको हम बोलते हैं कि एल्गोरिथम साइड में जाना है? No, I think it's mainly up to your interest. Like it starts with exploring other things apart from your core branch. Then you may get interested in some things. Like हम लोगों का तो पहले ऑनलाइन था सब, तो हम लोग पहले वो ऑनलाइन कोड ऐसे की क्लासेस चलती थी, तो वहां से थोड़ा बहुत देखा और कॉन्टेस्ट वगैरह देना शुरू किया। तो डीएसए अच्छा लगने लगा, मतलब लगा कि ऐसा ये कर सकते हैं, इंटरेस्ट है इस साइड में। मेरा बस वही रीजन था, इंटरेस्ट है उस साइड में। ऐसा मेरा कभी नहीं रहा कि कोड में नहीं जाना है या फिर कोड में क्या करना है, क्योंकि मैंने आईआरएस में इंटर्न भी की थी कोड में। और इसके अलावा मतलब कोड में मतलब ठीक ही लगता था मुझे। कोड ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोड से मुझे दुश्मनी थी या खराब लगता था। बट नॉन कोड मुझे अच्छा लगता था, और लगता था कि ये काम मैं ज्यादा टाइम तक कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो लाइफ टाइम को सोचना है ना। तुमने 2 साल 3 साल की तो बात नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है तुम ज्यादा पैसे कोड में कमाओ या फिर जो भी हो, लेकिन तुम जहाँ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वो काम कर ही नहीं पाओगे। तो क्या फायदा उधर जाने का, कुछ भी तुम कर रहे हो आगे जाकर। My now question is to all of the seniors who are in non-code. Like, what do you think about being tagged as a student of petroleum engineer? Is, you know, आपका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप एक पेट्रोलियम इंजीनियर हैं लेकिन आप नॉन कोड फील्ड में काम कर रहे हैं?
देखो इसका असर तो होता है, मतलब तुम जाओगे तुरंत तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम्हें वो दिख जाएगा इंटर्न और प्लेसमेंट सीजन में ही कि कंपनीज कैसे काट देती हैं तुम्हारा कोर ब्रांचेस होने पे। लाइक पहले बहुत कंपनीज पहले काट देती हैं, या जैसे जो अप्लाई करने का ऑप्शन आते हैं उसी टाइम में ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं कंपनीज। बहुत कंपनीज रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में या कुछ फिर बाद में कुछ इंटरव्यू तक भी ऐसा करती हैं कि हटा दे तुम्हें, या इंटरव्यू में पूछ भी सकती हैं कि तुम तो कोर वाले हो, इधर क्यों आना चाहते हो। तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब तुम अलग रास्ता तुमने चुना है तो तुम्हें प्रॉब्लम से डील करना होगा बस। My next question is, what was the strategy you followed to get placement in your respective company, and how did you prepare for it? I'd like to say that keep two resumes on hand, one for code and non-code. Like regarding the consultancy and similar like analytics firms, they like ask basic aptitude questions and some bit of English, a little bit of maths, maybe like PNC probability a little bit. So even if you like to know the basics of data analysis like Excel, Python data analysis, you can crack some analytics companies, petroleum focused analytics companies, like keep some projects on that field. And one resume should be entirely core, like all of you should have done an intern in 30. Will do it. If you haven't got a corporate intern, you will do a government one. So put that, and there will be a final year project. That's not kind of, I don't think it's relevant for placement kind, because it starts kind of before that. But so like keep one for uh, core and keep one for non-core like separately, and usually the SPRs will send you the formats. And I would say like since it's not true for my field exactly since I'm a consultant, but for my fellow coder friends, I would say that you are competing against people of branches who are specifically coding. So you need to like demonstrate your passion and dedication. Like you weren't born a petroleum engineering, right? You came here, you learned petroleum engineering, and now you're classified as a petroleum engineer. So I would say that if you want to get into core, you can just show that you have passion for that particular like web development, machine learning, whatever, and you have spent your 3 years working on it, right? And like despite being from a core branch, your passion is so strong that you have defied all odds and tried to create a resume on that. Like it should be visible from your resume for the non-core section, and that's it. Like keep lots of projects and create do DSA, I guess. That's it. Okay, and core is simple. I think the prior seniors must have said about core resumes. Definitely. My next question is to Mankul Sen, sir. Sir, you would like to tell something? Yes, I was about to say about Yes, sir. how Yes, sir. actually one should start. Like बहुत लोग ऐसे होंगे who have not, मतलब कौन सी ईयर के लोग हैं इन लोग? Are they from the second year? No, sir. We are from third year, second year, first year, all are there. Acha, acha, okay. So, like I'll tell it specifically for the people who are actually trying to pursue it right now and will start acting upon it. तो ऐसा है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद कोडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नॉलेज है कोडिंग लैंग्वेज का, जो कि ऑलमोस्ट सबको होगी क्योंकि पढ़ाई का होगा, देन उसमें थोड़ा ट्राई करो उसके थोड़े बेसिक सवाल से शुरू करने का एक बार को, एंड देखो कि एक्चुअली तुमको मज़ा आ रहा है कि नहीं. एंड एज कुमार सेड, दैट इज द पॉइंट. तुम डिसाइड कर लोगे कि येस आई वांट टू परस्यू दिस और नॉट. तो अगर वो तुम्हें अच्छा लग रहा है वहां पर, देन गो फॉर कंपेटिटिव कोडिंग धीरे धीरे. लाइक सॉल्व लो रेटेड क्वेश्चन, स्टार्टिंग में 800 रेटेड होंगे, 600 रेटेड करो उनको धीरे धीरे, एंड वंस यू गेट अलॉन्ग विद देम, देन तुम कॉन्टेस्ट देना शुरू करो. लाइक एक दो कॉन्टेस्ट दोगे, एक सवाल बनेंगे, किसी में एक भी नहीं बना, दो बनेंगे, तो धीरे 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 ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव एट इट और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे उसमें. इट्स नॉट लाइक कि तुम अभी से शुरू कर दोगे तो तुरंत तुम्हारे अच्छे सवाल बनने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. थोड़ा डिमोटिवेशन होगा, बट दैट शुड एक्ट एज फ्यूल कि तुम और अच्छे से उसको परस्यू करो फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग को. और रही बात कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अलावा, तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग से नहीं मिलता इंटर्नशिप. यू ऑल्सो रिक्वायर वेब डी स्किल्स या फिर कुछ एक एक्स्ट्रा, लाइक जो तुम रेज्यूमे में एक्चुअली प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे दिखा सको, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज प्रोजेक्ट देखती ही हैं. ऑलमोस्ट सारी कंपनीज, और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ कम्पिटिटिव कोडिंग देखेगी. हाँ, अगर बहुत
टॉप लीग कंपनीज है वो सिर्फ कम्परेटिव देखती हैं, बट ज़्यादातर कंपनीज वेबडी भी देखती हैं या फिर कोई भी एमएल भी हो सकता है वेबडी, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरू करो एंड फिर आगे बढ़ो। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू ओनली। आपने सेकंड 1 ईयर में मिनट यस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। तो मतलब लास्ट मोमेंट पे स्ट्रैटेजी वो कुछ नहीं हो पाता है। लाइक जो स्टार्टिंग से तुम कर रहे हो काम सबसे ज़्यादा वही आएगा। और तूने पहले बहुत ज़्यादा नहीं किया है तो लास्ट मोमेंट पे बस टेंशन होगी और प्रेशर में तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मतलब एटलीस्ट तुम्हारा डीएसए वाला पार्ट तो मतलब स्टार्टिंग से ही रहना चाहिए। लाइक तुम सेकंड ईयर में अभी हो जो उन लोगों को तो अभी से करना चाहिए, तो डीएसए स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत हेल्प होता है। और फिर इसके अलावा वेबडी या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा करते रहो और प्रोजेक्ट एक दो बना लो। फिर इसके अलावा और कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी पढ़ना जरूरी होता है। ये बात मुझे भी थोड़ी लेट पता चली थी कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स कितना जरूरी होता है, बट मैं तुम लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी काफी जरूरी होता है और ऑलमोस्ट अधिकतर कंपनी पूछती है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में स्पेशली ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फिर डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब तो मतलब कर ही लेना सब। मतलब स्टार्टिंग में नहीं, ये सब बाद में भी लोग कर लेते हैं। लाइक प्लेसमेंट से पहले वाले जो समर में होता है उसमें कर लेना या फिर समर के बाद भी। और इंटर्न में ज़्यादा कंपनी नहीं पूछती हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कोई कोई रेयरली पूछ लें या फिर मीडिया डॉट नेट वगैरह पूछती होंगी, बट जनरली कोई कंपनी इंटर्नशिप में नहीं पूछती है कंप्यूटर फंडामेंटल। बट प्लेसमेंट में तुम्हारे स्टार्टअप्स भी पूछती हैं, बहुत सारी कंपनीज पूछती हैं। तो प्लेसमेंट तक तो करना ही होगा। बस यही है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू उमंग सर। सर आपने 1 ईयर एक्स्ट्रा देख के आपने कंप्यूटर साइंस परस्यू किया है, राइट? यस। एंड आपने सेकंड ईयर के एंड में डिसाइड कर लिया था कि आपको कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में ही जाना है। सो माय क्वेश्चन हाँ, इज, अगर आप 1 साल कॉलेज में ना देके आप खुद ही ब्रेक लेके अपनी स्किल्स डेवलप करते, तो आपको क्या लगता है कि वो वाला उमंग एंड अभी का जो आप करंट हैं उनमें कौन बेस्ट होता है या कंपनी किस पे ज़्यादा वैल्यू देती है? आई गेस दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इन्फ्लुएंस हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि डबल मेजर मैंने परस्यू किया तो मेरा ऐसे फिक्स हो गया कि हाँ मेरे को यहीं जाना है। एंड लाइक कुमार सेट कि अगर तुम लोग स्टार्टिंग में मतलब डिसाइड कर ले कि हाँ मेरे को कोड नहीं करना है, लाइक मेरे को कोडिंग में जाना ही है, तब तुम्हारा जो पाथ होता है ना दैट इज़ वेरी डिफरेंट। एंड अब जैसे मैंने डिसाइड कर लिया था सेकेंड ईयर के एंड में कि हाँ मुझे ये कोडिंग ही करना है प्रॉपरली, तो मेरा पूरा फोकस उसी पे था कि हाँ मेरे को जो इंटर्न सीजन है उसके लिए मेरे को कोडिंग कंपनी से बैठना है, मैं कोर में ट्राई ही नहीं करूँगा। तो मेरा पूरा फोकस कोडिंग पे था, लाइक फ्रॉम द फंडामेंटल्स टू कम्पिटिटिव कोडिंग एंड वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ है आई वुड टेल कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बिकॉज 1 साल जो एक्स्ट्रा मिलता है ना हमें वो वेस्ट ही हो जाता है, मतलब वो कोई काम का नहीं होता जो लास्ट ईयर होता है। जो मेन पार्ट है जहाँ पे इंटर्न मिलती है दैट इज द सेम फॉर एवरीवन, तुम लोग के लिए भी सेम होगा जो मेरे लिए था। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई डिफरेंस होता है, बट हाँ इसमें डिफरेंस होता है कि तुमको कैसा पीयर ग्रुप मिलता है। तो मैं जिस पीयर ग्रुप के साथ था उनका भी सेम एम्बिशंस गोल्स था, तो थोड़ा हेल्प मिलता है उससे, बट लाइक नॉट अ बिग सॉर्ट ऑफ थिंग। Thank you, sir. The next question is, how important is the prospect of CGPA in getting a placement in non-core companies? ऑन कैंपस में तो नहीं पड़ता है उतना, मतलब अ, क्योंकि पेट्रोल अगर कुछ लोग सिर्फ पेट्रोलियम के थ्रू जा रहे हैं नॉन कोर में, तो उनके लिए वही कंपनीज ओपन होंगी जो ओपन टू ऑल होंगी जनरली, ओपन टू ऑल वाली। क्योंकि ऐसी कोई कंपनी नहीं आती है जो सिर्फ हाँ पेट्रोलियम के लिए ओपन हो गई, नॉन कोर में ऐसा नहीं होता है। तो जो कंपनीज रहेंगी ओपन पेट्रोलियम के लिए दैट विल बी ओपन फॉर ऑल। तो उनमें सीजीपीए कम ही रहता है, जनरली 7 होता है, कुछ का 6.5 होता है, 7.5। मतलब अगर तुम्हारी सीजी 7.5 के ऊपर है then you're good to go with like the process, I think. सीजी के बारे में मैं भी ऐड करना चाहूंगा। सीजी के बारे में मुझे याद आ रहा है कि जब मैं सेकंड ईयर में था तब के प्लेसमेंट टॉक्स में मुझे सीनियर्स ने कहा था, मैं भी वही बात बोलूंगा कि सीजी जितना ज्यादा रख सकते हो उतना अच्छा है। मतलब जितना ज्यादा रखो। और पेट्रोलियम में उतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है सीजी के लिए। तुम लोग अगर थोड़े टाइम पहले भी एग्जाम के पढ़ लोगे तो ठीक ठाक सीजी आ जाएगा। और 7.5 तो रखो ही, मतलब ट्राई करो कि उतना रहे ही। क्योंकि सीजी का रीजन ये भी है कि लाइक स्प्रिंकलर तुम लोगों को पता होगा कंपनी,
बहुत अच्छी कंपनी है नॉन कोड में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है कोडिंग के लिए। उसमें मतलब कोडिंग राउंड में जितने क्वेश्चन आए थे मैंने सब बना दिया था, और वो भी टाइम से पहले, मतलब 10-15 मिनट पहले। उसके बाद भी मतलब कोडिंग राउंड के बाद उसने सीजी पे वो कर दिया, जैसे 3 क्वेश्चन थे तो उसने ऐसा कर दिया कि जिसने 2 भी बनाए हो बट सीजी 8 या 8.5 प्लस है, उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया ऐसा डायरेक्ट। तो ये भी सीन होता है कंपनी में, इसलिए सीजी जितना ज्यादा रखो उतना बेटर है। और कम कंपनीज आएंगी तब किसी बेसिस पे तो वो हटाएंगे ना, तो सीजी भी कभी कभी कर लेते हैं। बस वही है, सीजी जितना ज्यादा रख सकते हो उतना बेटर है। और ऑफ कैंपस में तो सीजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। ऑन कैंपस में तो रहता ही है जैसे इसने कहा, क्योंकि वो फिर लास्ट मेट्रिक, अगर बहुत लोगों ने कोडिंग राउंड क्लियर कर लिया है तो उनके पास एक ही मेट्रिक बचता है जिनसे वो लोग फिल्टर करेंगे, दैट इज सीजी। तो क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन होगा तो थोड़ा चलो अच्छा रहेगा। ऑनलाइन में तो मतलब ऐसा था कि सारे लोग ही क्लियर कर ले रहे कोडिंग राउंड एंड फिर सीजी के बेसिस पे हो रहा है फिल्टर। तो ये प्रॉब्लम तुम्हें फेस नहीं करनी पड़ेगी, बट स्टिल सीजी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। हाँ, और पीयर्स तुम लोग मतलब अच्छे बनाना, जैसे जो कोडिंग करता है वो दूसरे ब्रांच वालों के साथ भी, जो अच्छा कर रहे हैं कोडिंग किसी भी ब्रांच के हो, सीएससी के या पेट्रो के ही हो, या दूसरे कोई भी ब्रांच के जो अच्छा कोडिंग कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा मतलब रखो तो बेटर है, थोड़ा एक ग्रुप रहता है तो हेल्प मिलता है। और ऑनलाइन अगर हुआ फिर तो मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें, क्योंकि उसमें ब्रांच वांच उसमें सब लोग निकाल लेते हैं कोडिंग ऑन ऑलमोस्ट, तो फिर ब्रांच ये सब पे वो लोग हटाते हैं कंपनीज। बट ऑफलाइन होता है तो थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि तुम में अगर टैलेंट है तो तुम दूसरे ब्रांच से भी हो तो तुम बेटर कर रहे हो तो तुम्हें मौका मिलेगा। बस। सर शायद लास्ट क्वेश्चन इज दैट आपकी सपोज के लिए जॉब लग भी गई, इधर ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस डजंट मैटर, 4 साल बाद अगर आपको स्विच करना हुआ कोई बेटर कंपनी में जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज है, तो क्या वहाँ पे आपका पेट्रोलियम का बीटेक हिंडर करेगा आपका मूवमेंट? देखो ये बात तो अभी मतलब बोल ही नहीं सकता है ना, 4 साल बाद पूछना तब बताएंगे। सर ओके सर। I mean, like, मैं कहूँगा कि is actually harder on campus placement because you are a petroleum student trying to break into a non-con firm. But if you have industry experience, you are just displaying that you have successfully worked 4 years in the industry. It should be easier, to be honest. Like, you will have more connections and you can just show that I have worked 4 years in a coding company. I am suitable to work in a company. You don't have to judge me on the basis that I'm a petroleum engineering student. So I'd say that it's easier. After that, the getting into from college is the harder part for non-core, definitely. हाँ, और इसके अलावा रिज्यूमे में हमेशा ये मेंशन करना जरूरी थोड़ी है तुम कौन से ब्रांच से हो, मतलब लाइक एक सीनियर ने मुझे बताया था, हम लोग से 2 साल सीनियर थे, वो तो मतलब ऑफ कैंपस में शायद वो लिखते भी नहीं थे, और मुझे भी बोला था कि ऑफ कैंपस अप्लाई करो तो मतलब बस लिख देना कॉलेज का नाम और बैचलर्स डिग्री। कुछ कंपनीज हो सकता है पूछ लें, कुछ में भी ना भी पूछें, और 4 साल बाद तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ना भी पूछे, क्योंकि तुम्हारा प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस देख के और कहाँ से पास आउट हो उतना देख के भी छोड़ दें। तो ये मतलब है कि तुम ऐसा भी लिख सकते हो लाइक IIT ISM धनबाद, उसके बाद बैचलर्स डिग्री, ऐसा भी ऑफ कैंपस में ट्राई कर सकते हो। और बाद में तो मतलब लोग करते ही होंगे, क्यों ही ब्रांच बताएंगे, मतलब एक्सपीरियंस जब हो गया तब। Thank you so much, seniors, for your presence. It was very insightful and helpful for all the. Tulsi sir, would you like to add something? यस, मेरे को बस एक बात कहनी थी कि तुम लोग अगर पेट्रोलियम के थ्रू कर रहे हो फिर, तो याद रखना कि कोडिंग के अलावा प्रोजेक्ट्स पहले से ही देख लेना। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जाके दोस्त ही मांगोगे, बट ठीक है वो पहले कर लेना, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। तुम मैं जैसे मेरे इंटरव्यू में प्रोजेक्ट पे ही बात हुआ था, और क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग डीएसए के, बट वंस वो हो गया ना क्वेश्चंस, देन वो लोग क्या पूछेंगे तुम्हारे रेज्यूमे से, एंड रेज्यूमे में तुम्हारा प्रोजेक्ट्स रहेगा। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स देना जो तुम एक्चुअली एक्सप्लेन कर पाओ, जो तुम एक्चुअली वहाँ पे समझा पाओ। ये नहीं कि मैं फुल स्टैक दिखा दूंगा एक प्रोजेक्ट मेरे को ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो प्रोजेक्ट्स पे खास ध्यान देना। एंड दूसरा पॉइंट, नॉन सर्कुलर से हो तो अब कुछ तो फायदा मिलता है सर्कुलर लोगों को। तो तुम्हारा क्या फायदा है कि तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करना शुरू कर दो पहले ही, मतलब जैसे ही तुम्हारा इंटर्नशिप सीजन शुरू हुआ ना उससे पहले ही अप्लाई करना शुरू कर दो, ताकि तुम वन स्टेप अहेड रहो एटलीस्ट। क्योंकि इसमें एक चांस रहता है ऑफ कैंपस में कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए जल्दी जल्दी,
मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहता है अलग अलग कंपनीज के, तुम लोग को दिख जाएंगे, वो कोड ISM के ग्रुप्स पे भी आ जाता है, तो ट्राई करना उन पे मतलब करने का। That's all. हाँ, मैं सर की बात पे ऐड करना चाहूंगा प्रोजेक्ट्स का जो है। तो मतलब प्रोजेक्ट से मुझे ही प्रॉब्लम हुआ था, तो प्रोजेक्ट से तुम लोग थोड़ा ध्यान देना। बहुत लोग मतलब ये करते हैं, और ये मतलब CSE EC वाले सब करते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो उनको एंड मोमेंट पे उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो वो प्रोजेक्ट मान लो एक कंपनी नहीं समझा पाई, दूसरे में समझा देंगे, या फिर किसी 4-5 इंटरव्यू दिए, किसी कंपनी में प्रोजेक्ट का पूछा ही नहीं तो वहाँ निकल जाएंगे। बट तुम्हारे पास ऑप्शंस कम है, तो इसलिए प्रिपेयर हर चीज़ के लिए रहोगे तो बेटर होगा। तो प्रोजेक्ट के लिए पहले से ट्राई करना कि अच्छा प्रोजेक्ट बना लो और प्रिपेयर कर लो अच्छे से बताने लायक, पूरी कंपनी पूछती है वो। और इसके अलावा फिर ये सब प्रोग्राम्स पे तो ध्यान देना ही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एंगेज होता है, उससे हमारे बैच में इंटर्नशिप्स लगी थी कुछ लोगों की। और फिर सिस्को का ही कुछ हुआ था पिछले बार, वो मैंने भी दिया था, बट लास्ट में उसने मतलब किया था कुछ कि वो बाद में बुलाएगा और टेस्ट लेके इंटरव्यू के लिए, बट फिर कुछ अपडेट नहीं आया उस पर। तो सिस्को से भी हुआ था, कुछ लोगों का प्लेसमेंट भी हुआ हमारे बैच से, मतलब पेट्रोलियम से प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट इंटर्न लगा था शायद एक जूनियर बैच में किसी का। तो ये सब प्रोग्राम्स पे थोड़ा ध्यान देना, इससे लगता है बहुत बार इंटर्न ये सब। Yes, and also Unstop एक तुमको पता ही होगा, Unstop हायरिंग, Unstop एक साइट है, वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैकाथन्स वगैरह होते हैं कंपनीज के, जैसे वॉलमार्ट फॉर एग्जांपल, मतलब वॉलमार्ट तो सोली इसके बेसिस पे हायर करती है इंटर्न्स को। उनका एक हैकाथन होगा और कोडिंग राउंड, कोडिंग कंटेस्ट होगा उसमें अनस्टॉप पे, एंड उसके बेसिस पे AI इंटरव्यू से ले लेते हैं। तो इसमें तो बहुत लोगों ने क्या किया था, अपने दोस्तों को बिठाया था, एंड AI इंटरव्यू भी वो लोग नहीं दिए थे ऐसा, और क्लियर हो गया था उनका वॉलमार्ट। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब ध्यान रखना है, ये सब मिस मत करना कुछ भी हो जाए, दीज आर वेरी की। Okay, I like to speak a few lines before the end as the only representative of consultancy here. As I would say, like brush up on your core knowledges, and everything that is on your CV is gonna be asked. So be prepared for it. If I put WebD, be prepared for it. If you put ML, be prepared for it. And the thing that I would like to say is that like prepare for case studies, root cause analysis, RCAs, and guesstimates. And you don't have to prepare for it from second year. And like if you're getting shortlisted for a consultancy company where the rounds are mostly apti, some may have one, like Accenture had one, ZS had three. There was a speaking round for English where I had to speak into the mic. There was a mass round, and there was a case study round online. It's quite easy to clear. I did it without preparation, all three of them. But in the interview, there will be definitely be a guesstimate question, which is a question like how many phones you can sell in certain city. So you'll have to guess like they let there be XM number of population. There's a eligible age of 15 to 75. Blah blah. Prepare that, and make sure your communication skill is a bit brushed up. Talk with your friends, like you can express your thoughts clearly. And that's it. That's more or less for consultancy. You're not expected to be a management consultant because you're being hired from an IIT. Be an engineer and be speaking clearly. That's it. And all the best for your placement, whoever is listening. Thank you. Thank you so much, sir. And I guess you have packed enough information and motivation to help us in our upcoming internship and placement season. Thank you all once again and wish you all the best for your future endeavors. Thank you, Sinex. Thank you everyone, Thank you, and sir. make sure to reach out if you have any doubts. You can reach out to any one of us. We will Sure. surely help. Yeah, you can reach out to us anytime. Thank you, sir. All the best. Thank you, sir.